ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 9 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸਪਲੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਵਾਰ ਐਂਡ ਆਰਮਡ ਕੌਨਫਲਿਕਟ। 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸਪਲੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਵਾਰ ਐਂਡ ਆਰਮਡ ਕੌਨਫਲਿਕਟ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਚਾਚਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ। ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਚਾਚਾ ਚੌਧਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 6 ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਅੰਡਰ ਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਵੌਨ COVID-19 ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੈਲੰਜ ऑर्गेनाइज्ड बाय माई गवर्नमेंट पोर्टल एंड UN वूमेन। माई गवर्नमेंट पोर्टल और यूनाइटेड नेशंस वूमेन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मिलके COVID-19 श्री शक्ति चैलेंज ऑर्गेनाइज किया गया, जिस दे विच 6 स्टार्टअप्स ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੂਮਨ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ IT ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 51 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ TV ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵੈਂਪਤੀ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। IT ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ IT ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਪਟਨਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ 40th ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰਕ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਸਾਰਕ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਜਨਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। 8 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇਪਾਲ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 40ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ RBI ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਚੁਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੋਰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਫਰੋਮ 40 ਕੰਟਰੀਜ਼ 40 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इंडिया नॉर्दिक बैल्टिक कनकलेव मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई COVID-19 के लिए नॉर्दिक और बैल्टिक कंट्रीज़ के नाल। नॉर्डिक कंट्रीज़ की गल करते हैं तो डिस्कस की सी अपने डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन 5 कंट्रीज़ मैंबर ने। और बैल्टिक कंट्रीज़ 3 कंट्री को कहा जाता है बैल्टिक कंट्रीज़ इस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया। क्वेश्चन स्टैटिक फॉर्म के पूछा जा सकता है कि किहड़ी कंट्री बैल्टिक कंट्री की मैंबर है। बैल्टिक कंट्री दे विच 3 कंट्रीज आंदियां ने इस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया। नेक्स्ट है रफल नडाल चौथे ऐसे पर्सन बने ने, टैनिस प्लेयर बने ने जिन्हों ने 1000 मैचिज जीते। टैनिस के 1000 मैचिज जीते जाने वाले चौथे पर्सन रफल नडाल। फर्स्ट जिमी कॉर्नर्स ने, सेकंड नंबर पर रोजर फेडरर ने और थर्ड प्लेस इवान लैंडी। नेक्स्ट है विनय सीतापति
बुक लिखी गई है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। द बीजेपी बिफोर मोदी इस बुक नूं किन्ना द्वारा लिखा गया? विजय सीतापति द्वारा। विजय सीतापति जुगलबंदी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च किया सीगा किस दे लई? टू हैल्प इट्स एम्प्लॉयज़ टू डील विद देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड प्रोफैशनल इशूज़। पर्सनल प्रॉब्लम्स और प्रोफैशनल इशूज़ नूं डील करन दे लई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग शुरू की गई है एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम के अंडर बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा। हैडकुआटर याद रखना है वडोदरा गुजरात दे विच। वडोदरा गुजरात दे विच हैडकुआटर है बैंक ऑफ बड़ौदा का। पेटीएम द्वारा SBI कार्ड के नाल पार्टनरशिप की गई टू लॉन्च पेटीएम SBI कार्ड। पेटीएम SBI कार्ड रिसेंटली आप डिस्कस किया सी WhatsApp द्वारा भी पेमेंट सर्विस शुरू की गई है। अच्छा इसी क्लास में भी डिस्कस किया सी WhatsApp नूं भी NPCI वालों अप्रूवल मिली है UPI बेस्ड पेमेंट्स के लिए। ICICI बैंक की गल करते हैं। ICICI बैंक माइन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है मैलेनियल कस्टमर्स के लिए। मैलेनियल कस्टमर्स बेसिकली 18 तो 35 साल की उम्र के जोड़े कस्टमर्स ने उन्होंने मैलेनियल कस्टमर्स कहा जाता है। हरदीप सिंह पुरी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर ने इन्होंने नर्चरिंग नेबरिंग चैलेंज लॉन्च किया। नर्चरिंग नेबरिंग चैलेंज लॉन्च किया गया विद द हैल्प ऑफ बर्नार्ड वैन लीर फाउंडेशन नीदरलैंड। बर्नार्ड वैन लीर फाउंडेशन नीदरलैंड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई जिसके 20 कंट्रीज द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। नेक्स्ट है बांग्लादेश द्वारा MOU साइन किया गया है बैक्सिमको फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाल। बैक्सिमको फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया बांग्लादेश का किस दे लई? 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोसिस के लिए। चाइना द्वारा जैकमा कंपनी की अलीबाबा ग्रुप और एंड ग्रुप इन्हां दोनों को सस्पेंड किया गया फॉर वर्किंग इन हांगकॉन्ग। एलासेन क्यूतेरा तीसरी बार प्रेजिडेंट बने ने आइवोरी कोस्ट के। आइवोरी कोस्ट कह सकते हैं या कोटे दी एवोर एक ही कंट्री है। कोटे दी एवोर या आइवोरी कोस्ट तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने ने एलासेन ओतेरा। प्रेजिडेंट बने यामुस्कुरो कैपिटल है। करेंसी इको चलती है। मनोज मुकुंद नरवाने इंडियन चीफ ऑफ आर्मी ने इन्हों नेपाल आर्मी द्वारा की दिता गया ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल आर्मी। ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल आर्मी बाय प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट है निकारागुआ कंट्री दे विच हरीकेन आया ईता हरीकेन किहड़ी कंट्री दे विच आया? निकारागुआ कैपिटल मानागुआ है। करेंसी कोर्दोबास चलती। रफाल की गल करते हैं 3 रफाल आए ने इंडिया दे विच या कह सकते हैं 3 होर आए ने। असली गल ये बनेगी कि पहले 1 आया सी उस तो बाद 3 होर आ गए सी हुण 3 होर आए ने यानी कि टोटल 7 आ चुके हैं। टोटल आने किन्ने ने 36 आने ने। जामनगर एयरबेस के लियाए गए ने ये 3 गुजरात के। पहले वाले कित्थे लियाए गए सी? हरियाणा के अंबाला एयरबेस हरियाणा। तमिलनाडु EK पलानास्वामी चीफ मिनिस्टर ने मोबाइल अम्मा कैंटीन्स लॉन्च की ने सबसिडाइज प्राइस के उत्ते फूड प्रोवाइड करवाने के लिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा 38th नैशनल गेम्स की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए अमाउंट कह सकते हैं सैंक्शन की गई है। अपने लिए इंपोर्टेंट बनेगा 38th नैशनल गेम्स 2022 के होंगे उत्तराखंड के। एन एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन स्पेशल फोर्सिस बुल स्ट्राइक एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज लॉन्च की गई है टेरेसा आइलैंड अंडेमान एंड निकोबार। टेरेसा आइलैंड अंडेमान एंड निकोबार दे विच। नेक्स्ट चलते हैं स्टैटिक पोर्शन के डिस्कस करांगे द्रोणाचार्य अवार्ड। सैटरडे भी आप यही अवार्ड डिस्कस किए सी सेम नाम अज दोबारा रिपीट कर रहे हैं। कल आप नैक्सट 4 डिस्कस करांगे। बेसिकली की है कि टोटल 8 लोगों को लाइफ टाइम कैटेगरी के अवार्ड दिता गया और 5 लोगों को रैगूलर कैटेगरी के अवार्ड दिता गया। द्रोणाचार्य अवार्ड कोचिज़ को दिता जाता है। ये याद रखना है लाइफ टाइम कैटेगरी के 5 लाख तो अमाउंट इंक्रीज़ करके 15 कर दी गई है।
ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਧਰਮੇਂਦਰ ਤਿਵਾਰੀ ਆਰਚਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਏ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਰੋਮੇਸ਼ ਪਥਾਨੀਆ ਹਾਕੀ ਦੇ ਲਈ। ਧਰਮੇਂਦਰ ਤਿਵਾਰੀ ਆਰਚਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਏ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਰੋਮੇਸ਼ ਪਥਾਨੀਆ ਹਾਕੀ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਫਰਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 7 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ, ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ, ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ ਇਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਫੈਬਰਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 4 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਸੁਨਾਮੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇ, ਵਰਲਡ ਸੁਨਾਮੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਲਈ। ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਨੂੰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਵਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ ਉਤਸਵ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਚਾਚਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਇਜ਼ ਅਪੋਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦੁਆਰਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੇਂਦਰੋ ਨਿੰਗੋਂਗਬਮ ਨੂੰ ਇੰਟੈਰਿਮ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਟੈਰਿਮ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਿਆਨੇਂਦਰੋ ਨਿੰਗਾਂਬਮ ਨੂੰ। ਗਿਆਨੇਂਦਰੋ ਨਿੰਗੋਂਗਬਮ ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਨਲ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦੀਲੇ ਸੁਮਨਰੀਵਾਲਾ ਐਥਲੈਟਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੀ-ਇਲੈਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ BCCI ਦੇ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ। ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ BCCI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 39 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰੀਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿੰਨਾ ਲਵੇ? ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰੀਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਲਵੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਫॉर ਇੰਡੀਅਨ ਨੌਲੇਜ ਸਿਸਟਮ। ਕਿਹੜੀ IIT ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ IIT ਦੁਆਰਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੌਲੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ 3rd ਆਪਸ਼ਨ IIT ਖੜਗਪੁਰ। IIT ਖੜਗਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ IIT ਖੜਗਪੁਰ ਦੀ ਹੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਐਪ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ICMR ਦੁਆਰਾ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਕਿੱਟ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ISAC ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਚੈਸਟ ਐਕਸਰੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੈਸਟ ਐਕਸਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ COVID-19 ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਥਡ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ IIT ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੁਆਰਾ। IIT ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਸੋਰ ਕਿੱਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਸੋਰ ਕਿੱਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ।
इस तो इलावा वॉश करो एप्लीकेशन डिस्कस की सी IIT दिल्ली द्वारा ही अगर आप गल करिए बिल्कुल रिसेंटली चक्कर दी कौव कैबिनेट बनाई गई सी, ये भी याद रखनी है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए रोपड़ दी IIT रोपड़ द्वारा वार्ड बोट रोबोट डेवलप किया गया सी। IIT रुड़की द्वारा सब तो पहले प्राण वायु वेंटीलेटर याद रखना IIT रुड़की द्वारा। यूनिसेवियर भी IIT रुड़की द्वारा डेवलप किया गया सी। ठीक है जी, IIT रुड़की द्वारा प्राण वायु वेंटीलेटर सब तो पहले डेवलप किया गया सी, ये याद रखना है। इस तो इलावा इसी टाइम के जीवन वेंटीलेटर भी बनाया गया सी इंडियन रेलवेज द्वारा, बेसिकली कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री द्वारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर्ड विद अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन डेल टेक्नोलॉजीज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई टू लॉन्च प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी टू इंपैक्ट कैरियर स्किल्स टू 1 लाख स्टूडेंट्स। बेसिकली क्वेश्चन की है कि 1 लाख स्टूडेंट्स ਨੂੰ ट्रेनिंग कराने ਦੇ ਲਈ कैरियर स्किल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रेनिंग कराने ਦੇ ਲਈ प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी लॉन्च किया जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन और डेल टेक्नोलॉजीज के नाल मिलके। किसने किया पार्टनरशिप? ये NSDC ने। ऑब्वियसली स्किल ट्रेनिंग है तो NSDC द्वारा ही की जाएगी। NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा इस पार्टनरशिप को किया गया। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर NSDC की ही गल करते हैं तो NSDC द्वारा ही माइक्रोसॉफ्ट के रिलेटेड आप डिस्कस की सी, रिसेंटली पार्टनरशिप की गई है। NSDC द्वारा ही रिसेंटली ब्रिटेन एशियन ट्रस्ट के नाल भी पार्टनरशिप की गई सी। ठीक है, इफैक्ट्स याद रखने ने 2008 के विच बनाई गई सी, ये भी याद रखने। NPCI भी 2008 के विच बनाई गई सी। NPCI ने WhatsApp को अप्रूवल दी है, याद रखनी है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ द हैडकुआटर दसना है। हिंट दे देना हैडकुआटर दिल्ली के विच नहीं है, ठीक है, और मुंबई के विच भी नहीं है। होर हिंट दे देना IRDAI का हैडकुआटर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेबी का हैडकुआटर और सिडबी का हैडकुआटर भी दसना है कमेंट बॉक्स के। सेबी की गल करते हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और सिडबी की गल करिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, और सिडबी की गल करिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखने। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टिल वी विन इंडियाज फाइट अगेंस्ट COVID-19 पैंडेमिक। बुक लिखी गई है टिल वी विन इंडियाज फाइट अगेंस्ट COVID-19 पैंडेमिक। इस बुक को किन्ना द्वारा लिखा गया है? इस बुक का ऑथर ने ऑल ऑफ दिस, बेसिकली चंद्रकांत लहारिया, गगनदीप कैंग और रणदीप गुलेरिया 3 पर्सनस द्वारा मिलकर एक बुक लिखी गई है। नाम याद रखने ने चंद्रकांत लहारिया, गगनदीप कैंग और रणदीप गुलेरिया। ठीक है, इस तो इलावा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम फर्स्ट ऑप्शन बनेगा चंद्रकांत लहारिया। ठीक है, एम्स के फॉर्मर डायरैक्टर भी रह चुके हैं, याद रखने। नेक्स्ट है हु इज अपॉइंटेड एज MD and CEO ऑफ ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन विदेश। ONGC विदेश के MD and CEO अपॉइंट किए गए हैं। नवे MD and CEO AK गुप्ता नूं MD and CEO अपॉइंट किया गया ONGC विदेश का। फुल फॉर्म याद रखनी है ONGC की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है जी। इस तो इलावा ONGC की गल करते हैं हैडकुआटर मुंबई के विच है, ये भी याद रखना है। ONGC की गल करते हैं 1965 के विच बनाई गई सी। कदों बनाई गई सी? 1965 के विच बनाई गई सी ONGC। इस तो इलावा बाकी ऑप्शंस के रिलेटेड कुछ न्यूज़ ने डिस्कस कर लेने। सब तो पहले विदिशा मैत्रा इलैक्ट किए गए हैं यूनाइटेड नेशनस एडवाइजरी कमेटी के विच। किसदी? ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस। यूनाइटेड नेशनस की एडवाइजरी कमेटी है जी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस की,
इस दे विच इलैक्ट किए गए ने विदिशा मैत्रा। इसकी एडवाइजरी कमेटी के मैंबर अपॉइंट किए गए ने विदिशा मैत्रा। इंडियन ने, नाम इंपोर्टेंट बनेगा, याद रखते। MM कुट्टी, MM कुट्टी नूं बेसिकली कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। कुछ दिन पहले तुहानूं याद होगा आपां डिस्कस किया सी दिल्ली दे विच स्टबल बर्निंग नूं रोकण दे लई MB लोकुर कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने, उन्होंने अपॉइंट किया गया सी, कमेटी बनाई गई सी, उसके हैड अपॉइंट किया गया सी किस दे लई, ताकि स्टबल बर्निंग नूं रोकिया जा सके पंजाब, हरियाणा और यूपी दे करके। सिमिलर तरीके से एक एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है कमीशन, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन है कह सकते हैं, इसनूं NCR रीजन के लिए बनाया जाता है। NCR रीजन के लिए इन्होंने 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया। MM कुट्टी नूं चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है ताकि पोल्यूशन नूं रोकिया जा सके, एयर क्वालिटी नूं इंप्रूव किया जा सके। रुतेजा भोंसले, रुतेजा भोंसले बेसिकली अगर आप गल करिए टैनिस तो बिलोंग करते, स्पोर्ट्स पर्सन ने, टैनिस तो बिलोंग करते हैं, नाम इंपोर्टेंट बनेगा रुतेजा भोंसले। रुतेजा भोंसले द्वारा इजिप्ट दे विच की जितया गया है टैनिस फैडरेशन टाइटल, इंटरनेशनल टैनिस फैडरेशन का टाइटल जितया गया है, किसनूं हरा के, एना सिस्कोवा नूं हरा के। एना सिस्कोवा जो कि क्रैच रिपब्लिक तो बिलोंग करते हैं, क्रैच रिपब्लिक तो बिलोंग करते हैं एना सिस्कोवा। इन्हों इंडियन परसन रुतेजा भोंसले इन्हों द्वारा जितया गया टाइटल। नेक्स्ट है वेयर इज द हैडक्वार्टर ऑफ ओपेक, ओपेक द हैडक्वार्टर कित्थे है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओपेक द हैडक्वार्टर बेसिकली न्यूज़ काफ़ी इंपोर्टेंट सी, इस करके स्टैटिक फॉर्म के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओपेक द हैडक्वार्टर कित्थे है। ओपेक द हैडक्वार्टर कित्थे है, वियना ऑस्ट्रिया दे विच है। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ऑस्ट्रिया दे विच ओपेक दा हैडक्वार्टर है। ओपेक की फुल फॉर्म या ओपेक के बारे फैक्ट्स ने जिहड़े डिटेल दे डिस्कस करते हैं। सब तो पहले ऑप्शन डिस्कस कर लेने कि पैरिस कित्थे है, फ्रांस दे विच है। 2024 दे ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे पैरिस फ्रांस दे विच, पहली गल ये याद रखनी है। पैरिस दे विच हैडक्वार्टर की गल करिए तो यूनैस्को का हैडक्वार्टर भी है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए न्यूयॉर्क की गल करते हैं तो न्यूयॉर्क के किस चीज़ का हैडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशंस का, यूनीसेफ हो गया, जिन्हें भी यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज़ ने उन्होंने हैडक्वार्टर कितने ने, न्यूयॉर्क के विच। किहड़े नूं छड्ड के, ICJ नूं छड्ड के। ICJ की है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हैडक्वार्टर कित्थे है, हेग दे विच। हेग कित्थे है, नीदरलैंड दे विच। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन गए, सारे नोट करते चलियो। हेग का हैडक्वार्टर कित्थे है, नीदरलैंड दे विच। वाशिंगटन DC की गल करते हैं, वाशिंगटन DC के IMF का हैडक्वार्टर सब तो इंपोर्टेंट बनेगा। इस तो इलावा वर्ल्ड बैंक का हैडक्वार्टर भी इंपोर्टेंट बनेगा वाशिंगटन DC के विच। जेनेवा के काफ़ी हैडक्वार्टर्स ने, जिन्हों के अगर आप गल करिए WHO हो गया काफ़ी इंपोर्टेंट, होर भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने जिन्हों का हैडक्वार्टर जेनेवा के विच। ILO होगी रिसेंटली न्यूज़ के रही सी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिस दे विच इंडिया नूं चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। इंडिया के जिहड़े लेबर सैक्रटरी ने अपूर्व चंद्र इन्हों चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। हुण अगर आप न्यूज़ की गल करिए ओपैक की, तो ओपैक के नाल इंडिया की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। ओपैक कंट्रीज़ ने जिहड़ियां, ओपैक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इस दे नाल एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई वर्चुअली, जिस दे विच इंडिया वालों धर्मेंद्र प्रधान जो कि पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस मिनिस्टर ने, इस तो इलावा इन्होंने स्टील मिनिस्ट्री भी है, इन्होंने इंडिया वालों रिप्रजेंट किया इस मीटिंग दे विच। ठीक है, हुण अगर ओपैक की गल करते हैं तो ओपैक नूं बगदाद दे विच बनाया गया सी, इराक दे विच। इराक की कैपिटल है बगदाद दे विच बनाया गया सी 1960 दे विच, 1960 दे विच। और रिसेंटली कुछ कंट्रीज़ ने जिन्होंने इसनूं क्विट किया है। क्वेश्चन इत्थों पूछा जा सकता है स्टैटिक फॉर्म दे विच कि रिसेंटली किहड़ी कंट्री ने ओपैक नूं क्विट किया सी, तो इक्वाडोर। इस तो इलावा अगर आप गल करिए कतर और एक होर कंट्री थी रिसेंटली जिसने क्विट किया सी, इंडोनेशिया द्वारा क्विट किया गया सी ओपैक नूं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ठीक है, सिमिलरली अगर आप गल करिए परसों की ही न्यूज़ है कि USA द्वारा भी
USA द्वारा भी क्विट किया गया पैरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट नूं, उसके बारे भी डिस्कस करांगे अगे न्यूज़ दे विच। सब तो पहले डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि फास्ट रेडियो बर्स्ट ये की चीज़ है और इसनूं किस द्वारा ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, फास्ट रेडियो बर्स्ट नूं नासा द्वारा ऑब्जर्व किया गया, नासा द्वारा ऑब्जर्व किया गया। ऑब्जर्व कह सकते हैं, डिस्कवर कह सकते हैं, की चीज़ है डिटेल दे विच डिस्कस करते हैं। की चीज़ है कि जिहड़ी स्टार्स ने डिफरेंट स्टार्स ने गैलेक्सी, अगर पहले तो नॉर्मली अपनी गैलेक्सी किहड़ी है मिल्की वे, हर एक नूं पता होएगा, छोटी क्लासिस दे विच बहुत बार पढ़िया कि जिहड़ी अर्थ है वो किहड़ी गैलेक्सी का पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। तो की है कि जिहड़ी ये गैलेक्सी है इस दे विच डिफरेंट स्टार्स तो की आ रही है, रेडिएशन आ रही ने इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन। पहले तो रेडिएशन याद रखने ने किहड़ी आ रही ने, इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन आ रही ने, जिसनूं नासा का एक टैलीस्कोप है चाइम टैलीस्कोप, कीवर्ड याद रखने ने इंपोर्टेंट बन गए। चाइम टैलीस्कोप पूछा जा सकता है किहड़ी कंट्री का है, तो USA आंसर आएगा। नासा का टैलीस्कोप है चाइम टैलीस्कोप। ठीक है, नासा का एक मिशन है स्टार नहीं कह सकते, स्टेयर मिशन है। इस मिशन के अंडर, इस मिशन बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है सर्वे फॉर ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमिकल एमिशन, सर्वे फॉर ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमिकल रेडिएशन एमिशन। इस मिशन के अंडर चैक किया जाता है। ठीक है, तो जी चाइम टैलीस्कोप है इन्होंने की दसिया है कि इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन आ रही ने मिल्की वे गैलेक्सी दे विच। ठीक है, जी कि हुण दे टाइम दे विच कोई ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, पर अगे फ्यूचर च जाके आपां नूं नुकसानदायक हो सकती है अर्थ दे लई। ठीक है, यह डिस्कवरी की गई है, न्यूज़ दे विच रहा, इन्ना पार्ट अपने याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन किवें पूछा जा सकता है, नासा के बारे पूछा जा सकता है, हैडक्वार्टर वाशिंगटन DC दे विच, नासा के हैड जिम ब्राइटस्टीन ने यह याद रखना है। नासा की बिल्डिंग का नाम मैरी जैक्सन के नाम के उत्ते रखा गया है, वाशिंगटन DC का। इस तो इलावा चाइम टैलीस्कोप पूछा जा सकता है। इस तो इलावा रिसेंटली नासा का ही सोफिया मिशन न्यूज़ दे विच रहा सी, मून के उत्ते वाटर लभण वाली सीगी जिहड़ी और नासा की सी सोफिया सैटेलाइट। इस तो इलावा नासा का ही मिशन याद रखना है अपोलो, जिहड़ा कि सब तो पहले मून के उत्ते गया सी। नासा का ही मिशन है, अगर आप गल करिए एक होर मिशन सीगा नासा का जिहड़ा इन्होंने अनाउंस किया हुआ 2024 दे विच जाएगा, जिस दे विच मैन और वूमैन नूं भेजा जाएगा नासा वालों। उस मिशन का नाम मेरे माइंड चो स्किप कर रहा है, चलो कोई गल नहीं, अगली बार डिस्कस कर लाँगे। अच्छा, इसरो का याद रखना है, इसरो की जी सैटेलाइट सी आप डिस्कस किया सी अर्थ ऑब्जरवेशन सैटेलाइट, ये जा चुकी है, सक्सैसफुली लैंड कर चुकी है PSLV C49 के नाल इसनूं भेजा गया 7 नवंबर को इसनूं भेजा गया सी, याद रखना है अर्थ ऑब्जरवेशन सैटेलाइट 01। ठीक है जी, इस तो इलावा अगर आप गल करिए होर की डिस्कस कर सकते हैं, जैक्सा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है, CNES फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम है, रोसकोसमोस रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। ठीक है, अच्छा USA की गल करिए, USA की स्पेस एजेंसी नासा है, तो USA दे विच आपां डिस्कस किया सी जो बिडन काफ़ी ज़्यादा अच्छी वोटां दे नाल जिते ने। ठीक है, अगर आप गल करिए नवे प्रेजिडेंट अपॉइंट किए जाएंगे जो बिडन, डिटेल दे विच डिस्कस करांगे इसनूं आपां कल के सैशन दे विच, या फिर किसी होर दिन डिस्कस कर लाँगे कि जो बिडन ने जिहड़े ये प्रेजिडेंट अपॉइंट किए जाएंगे अमेरिका के। वाइस प्रेजिडेंट की गल करिए आप डिस्कस किया सी, इन्हां द्वारा अनाउंस किया गया सी कि कमाला हैरिस नूं वाइस प्रेजिडेंट बनाएंगे, जो कि USA की हिस्टरी दे विच फर्स्ट वूमैन वाइस प्रेजिडेंट होंगे। USA के फर्स्ट वूमैन वाइस प्रेजिडेंट बन गए कमाला हैरिस, इंडियन ओरीजन ने, इस करके अपने लिए नाम इंपोर्टेंट बनेगा। डिटेल दे विच इन्हां दे बारे कल की क्लास दे विच आपां डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं विद विच कंट्री पाकिस्तान, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉकिंग न्यूज़ कल की क्लास दे विच भी आपां डिस्कस की सी कि पाकिस्तान एक एक्सरसाइज कंडक्ट करन जा रहा है दिरुजबा। इस एक्सरसाइज नूं किहड़ी कंट्री दे नाल कंडक्ट कर रहा है पाकिस्तान, फ्रांस दे नाल। कित्थे कंडक्ट की जा रही है, पाकिस्तान दे विच कंडक्ट की जा रही है। रशियन ट्रूप्स, रशियन मिलिटरी कह सकते हैं, पाकिस्तान दे विच लैंड हुई है डिजुर्बा एक्सरसाइज के लिए। डिजुर्बा एक्सरसाइज इंडिया पाकिस्तान और रशिया कंडक्ट कर रहे हैं, और ये पहली बार नहीं कंडक्ट की जा रही, इसका 5th एडिशन है। इस एक्सरसाइज का 5th एडिशन है जो कि कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है जी, इस तो इलावा इंडिया की गल करते हैं तो इंडिया की रशिया के नाल इंदिरा और एविया इंदिरा एक्सरसाइज है। इंदिरा एक्सरसाइज बिल्कुल रिसेंटली रशिया के नाल कंडक्ट की गई है। इस तो इलावा SCO की एक्सरसाइज याद रखनी है, कावकास SCO कंट्रीज की एक्सरसाइज सी
जिसनूं रशिया ने होस्ट किया सी और इंडिया ने इस दे विच पार्टिसिपेट नहीं किया सी। फ्रांस की गल करते हैं, फ्रांस के नाल इंडिया की एक्सरसाइज आप काफ़ी बार डिस्कस कीतियां ने, शक्ति वरुण गरुड़, शक्ति वरुण और गरुड़। इस तो इलावा यूएसए के नाल आप डिस्कस किया सी यूएसए की एक्सरसाइज किहड़ी-किहड़ियां ने, कोप इंडिया, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ठीक है, इस तो इलावा टाइगर ट्रंप याद रखनी है, इंपोर्टेंट बनेगी। यूके के नाल इंडिया की एक्सरसाइजिज ने जिहड़ियां यूके के नाल किहड़ियां ने, यूके के नाल मेरे माइंड चो हर बार स्किप करते हैं अग्नि वॉरियर, अग्नि वॉरियर नहीं, यूके के नाल काफ़ी इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, मेरे माइंड चो हर बार स्किप कर दी है। कमेंट बॉक्स में भी दसनी है यूके के नाल इंडिया की किहड़ी एक्सरसाइज है। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करिए मालाबार एक्सरसाइज बारे याद रखना है, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान चारों कंट्रीज मिलके मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही ने। नेवी एक्सरसाइज है, ये रखना है। 2 फेजिज के कंडक्ट की जा रही है। फर्स्ट फेज बे ऑफ बंगाल के कंडक्ट किया गया विशाखापट्टनम के, सैकेंड फेज अरेबियन सी के कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है जी। इंद्रधनुष और अग्नि वॉरियर, ठीक है जी, इंद्रधनुष और अग्नि वॉरियर यूके के नाल इंडिया की एक्सरसाइजेज ने। इस तो इलावा रशिया की गल करते हैं, रशिया रिलेटेड एक न्यूज़ डिस्कस कर लीए। दूसरी ये भी काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि रशिया के जोड़े प्रेजिडेंट ने व्लादिमीर पुतिन, रिसेंटली सूँ याद होएगा पर डिस्कस किया कि इन्होंने रेफरेंडम कराया और अनाउंस किया कि 2036 तक ये प्रेजिडेंट रहेंगे रशिया के, 2036 तक प्रेजिडेंट रहेंगे रशिया के। हुण इन्होंने डिसाइड किया कि अपनी पोस्ट क्विट करनगे, कि हुणे प्रेजिडेंट नहीं रहेंगे, इसी साल तक रहेंगे ड्यू टू हैल्थ रीजनस। अगले साल तो ये क्विट कर देंगे, पोस्ट में रिजाइन कर देंगे कह सकते हैं। 2036 तक कहा सी इन्होंने, 2020 भी पूरा नहीं कर पा रहे, कहते हैं कि साढ़े हैल्थ रीजनस करके ये पोस्ट छड़ी जा रही है। इस तो इलावा इटली की गल करिए तो इटली के नाल इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किए ने। बेसिकली मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, वर्चुअली ऑर्गेनाइज की गई सी मीटिंग और 15 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। अपने लिए 2 चीज़ां इंपोर्टेंट बनी है, रशिया के प्राइम मिनिस्टर के नाल, इटली के प्राइम मिनिस्टर के नाल मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। तो प्राइम मिनिस्टर का नाम इंपोर्टेंट बनेगा सर्जियो मैटारेला, सर्जियो मैटारेला। इस तो इलावा इटली कैपिटल रोम, करेंसी यूरो है। रोम तो याद रखना है जिन्नी भी फूड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस ने हैडकुआटर कितने ने, रोम दे विच। रोम की गल करिए FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हैडकुआटर। इस तो इलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंपोर्टेंट बनेगा। 2020 का नोबल पीस प्राइज दिता गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। नैक्सट है इंडिया के विच अगर आप गल करिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडियन डेलीगेशन को लीड करनगे 20th समिट। बेसिकली रशिया रिलेटेड ही ये न्यूज़ है कि जो SCO का हैड ऑफ स्टेट, काफ़ी बार डिस्कस किया है, SCO का हैड ऑफ स्टेट समिट है जोड़ा रशिया ऑर्गेनाइज करेगा 2020 का। बेसिकली इसनूं कल ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कल 10 नवंबर है। कल इंडिया वालों पार्टिसिपेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वर्चुअल तौर पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, पहली बार इस समिट को वर्चुअल तौर पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और सिमिलरली अगर आप गल करिए SCO का हैड ऑफ गवर्नमेंट समिट इंडिया होस्ट करेगा, ये होस्ट करेगा 27 के नज़दीक इसनूं होस्ट किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है हैड ऑफ गवर्नमेंट समिट इंडिया। USA की गल करते हैं, US जी आप गल की सी कि पैरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, USA फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने पैरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट नूं की किया, एग्जिट किया, इस तो बाहर होया। जिस तरीके नाल USA ने अनाउंस किया होया है कि WHO तो बाहर होएगा, इस तरीके नाल पैरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट तो भी काफ़ी पहले अनाउंस कर दिता गया सी, हुण फाइनली ऑफिशियली इसनूं एग्जिट किया गया। ठीक है, सिमिलर तरीके नाल WHO तो भी नैक्सट ईयर दे विच एग्जिट लेगा USA वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो। पैरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की गल करते हैं, इसनूं 2016 दे विच साइन किया गया सी 189 कंट्रीज द्वारा। नैक्सट है हाशिम ताची, हाशिम ताची, हाशिम ताची प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं केड़ी प्रेजिडेंट सीगे, इन्होंने रिटायरमेंट ली है। हाशिम चाची ने रेजिग्नेशन दिता है, केड़ी कंट्री की रेजिग्नेशन दिता गया, केड़ी कंट्री के प्रेजिडेंट सीगे, कोसोवो, कोसोवो के प्रेजिडेंट सीगे। कैपिटल प्रिस्टीना है, करेंसी यूरो चलती। मालदीव्स कैपिटल माले है, करेंसी रुपया चलती है। इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता, करेंसी रुपया चलती है। लिबेरिया, लिबेरिया कैपिटल
मोनरोविया करंसी डॉलर चलती है। और क्रोशिया की गल करिए, क्रोशिया कैपिटल जैग्रेब, करंसी कूनो चलती है। इस तो इलावा कुछ न्यूज़ ने डिस्कस करांगे मालदीव से रिलेटेड। सब तो पहले फॉरेन सैक्रटरी, इंडिया के फॉरेन सैक्रटरी ने हर्षवर्धन श्रिंगला, इंडिया के हैल्थ मिनिस्टर ने डॉक्टर हर्षवर्धन, इंडिया के फॉरेन सैक्रटरी ने हर्षवर्धन श्रिंगला। फॉरेन सैक्रटरी 2 दिन की विजिट पर जा रहे हैं मालदीव की 2 दिन की ऑफिशियल विजिट पर गए हैं। इस करके कंट्री न्यूज़ के विच रही है, कैपिटल और करंसी याद रखनी है। इस तो इलावा मालदीव के नाल इंडिया के काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, लोन दिते हुए हैं। अगर बेसिकली आप डिस्कस करिए तो 800 मिलियन का पहले दिता गया सी, उस तो बाद 500 मिलियन एक्सट्रा दिता गया, उस तो बाद भी होर काफ़ी लोन एग्रीमेंट्स साइन किए हुए हैं मालदीव के नाल, याद रखने ने। इंडोनेशिया की गल करते हैं तो 5th जॉइंट वर्किंग ग्रुप बेसिकली मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई कॉल के लिए इंडिया और इंडोनेशिया की 5th जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन कॉल मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। को चेयर इंडिया वालों विनोद कुमार तिवारी, इंडिया के एडिशनल सैक्रटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल मिनिस्ट्री के एडिशनल सैक्रटरी ने विनोद कुमार तिवारी, इन्हों वालों पार्टिसिपेट किया गया। कोल मिनिस्ट्री याद रखनी है। कोल मिनिस्ट्री कितना लवे है? कोल मिनिस्ट्री बेसिकली मेरे माइंड चो नाम स्किप कर रहा है। कोल मिनिस्ट्री, माइन मिनिस्ट्री, इस अलावा पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री भी उन्होंने लवे है। मेरे माइंड चो नाम स्किप कर रहा है, चलो तुसी कमेंट बॉक्स में भी दसना है। जकार्ता, इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता है, करंसी रुपया चलती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच स्टेट इज ऑब्जर्विंग इट्स फाउंडेशन डे ऑन 9 नवंबर। 9 नवंबर को केड़ी स्टेट अपना फाउंडेशन डे ऑब्जर्व कर रही है? केड़ी स्टेट फाउंडेशन डे ऑब्जर्व कर रही है? उत्तराखंड द्वारा फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया जा रहा है 9 नवंबर को। ठीक है जी। इस दिन बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उत्तराखंड गवर्नमेंट इस दिन अपना फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है। डिटेल के डिस्कस करते हैं। सब तो पहले डिस्कस कर लेने ऑप्शंस दे विच हरियाणा द्वारा बेसिकली अपने डिस्कस किया सीगा। हरियाणा दे विच बेसिकली की चीज़ां कीतियां गई ने रिसेंटली। अगर आप गल करिए परिवार पहचान पत्र स्कीम शुरू की गई सी हरियाणा द्वारा। हरियाणा दे विच ही बेसिकली अगर आप गल करिए सूरजकुंड मेला ऑर्गेनाइज किया गया सी। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा द्वारा। इस तो इलावा किशोरी सम्मान योजना हरियाणा द्वारा शुरू की गई सी, मुख्यमंत्री किशोरी सम्मान योजना। इस तो इलावा अगर आप गल करिए हरियाणा द्वारा ही दूध उपहार योजना भी शुरू की गई सी, याद रखना है। इस तो इलावा गुजरात की गल करते हैं, वहीली डिग्री योजना याद रखनी है। गुजरात की ही रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा इनोग्रेशनस की गई ने। गुजरात के विच यूनिटी डे वाले दिन भी की गई ने। इस तो इलावा ब्रिज याद रखना काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगा जिहड़ा। इस तो इलावा सी प्लेन सर्विसिज याद रखनिया ने, सी प्लेन सर्विसिज गुजरात दे विच। ठीक है जी। बाकी ऑप्शन अगर आप गल करिए सब तो पहले उत्तराखंड रिलेटेड न्यूज़ डिस्कस करते हैं कि उत्तराखंड के सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चैंती ब्रिज 2006 के इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई सी। 14 साल इसनूं बनाने के लग गए ने। इंडिया का सब तो बड़ा सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है कित्थे? तेहरी डिस्ट्रिक्ट, जो तेहरी डैम है वह भी उत्तराखंड के विच है, उसके नज़दीक बनाया जा रहा है। तेहरी डैम इंडिया का हाईएस्ट डैम है, याद रखना है भी इंपॉर्टेंट बनेगा। इंडिया का हाईएस्ट डैम केड़ा है? तेहरी डैम, उसके नज़दीक बनाया जा रहा है। डोबा चांती ब्रिज बना दिता गया, इसनूं कह सकते हैं कि इनोग्रेट किया जाएगा 9 नवंबर को। क्यों? क्योंकि यह फाउंडेशन डे है उत्तराखंड का। ठीक है जी। उत्तराखंड का फाउंडेशन डे 9 नवंबर। नैक्सट है गुजरात की गल करिए। गुजरात के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा दोबारा एक विजिट की गई और इनोग्रेट किया गया रोपैक्स टर्मिनल एट हजीरा और फ्लैग ऑफ की गई रोपैक्स सर्विस। रोपैक्स सर्विस का मतलब रोल ऑफ पैसेंजर फेरी सर्विस बिटवीन हजीरा एंड घोगा इन गुजरात। इट विल रिड्यूस डिस्टेंस ऑफ 370 किलोमीटर टू 90 किलोमीटर। बेसिकली की है कि हजीरा तो लैके घोगा तक
फेरी सर्विस शुरू की गई है, बोट सर्विस शुरू की गई है। रोल ऑन रोल ऑफ का मतलब है कि वो जाएगी भी और वापस भी आएगी हजीरा तो घोगा तक, ਜਿਹੜੀ कि 370 किलोमीटर के डिस्टेंस ਨੂੰ 90 किलोमीटर का बनाती है। फेरी सर्विस करके 90 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाएगा, जिसनों इनोग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। इस तो इलावा हरियाणा की गल करते हैं, पहले भी आप न्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। इसनों अप्रूवल दी गई है, पहले अनाउंस किया गया कि जी 75% जॉब्स ने प्राइवेट सैक्टर दियाँ और लोकल लोगों के लिए जोड़े हरियाणा के रहते हैं, जिन्होंने लवे डोमिसाइल है हरियाणे का, उन्होंने रिजर्वड की गई सी प्राइवेट सैक्टर दियाँ। उदों अनाउंस किया गया सी, हुण फाइनली असैंबली द्वारा पास किया गया। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की गल करिए, जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर द्वारा वैबसाइट लॉन्च की गई है अटल मैडिसिन साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अटल मैडिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी किहड़ी स्टेट दे विच है? हिमाचल प्रदेश। किहड़े डिस्ट्रिक्ट दे विच है? मंडी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट दे विच। जिस तरीके नाल अटल यूनिवर्सिटी भी बनाई गई सी, रिसेंटली आप डिस्कस किया सी अटल यूनिवर्सिटी, ये कित्थे बनाई गई सी? एमपी दे विच, एमपी दे विच इसनूं लॉन्च किया गया सी। ठीक है, अगर आप गल करिए मंडी डिस्ट्रिक्ट की, मंडी डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली न्यूज़ दे विच रहा सी ग्राम सड़क योजना करके। प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना की इंप्लीमेंटेशन दे विच टॉप किया सी मंडी डिस्ट्रिक्ट ने। किहड़े डिस्ट्रिक्ट ने? मंडी डिस्ट्रिक्ट ने। ठीक है जी। नैक्सट है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट ने मंडी डिस्ट्रिक्ट की गल की है। सिमिलरली चंदौली डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, इसने टॉप किया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग जारी की गई, टॉप किया गया यूपी द्वारा। नैक्सट है विच स्टेट हैज़ गॉट GI टैग फॉर तेजपुर लीची। तेजपुर लीची के लिए GI टैग दिता गया किहड़ी स्टेट नूं? किहड़ी स्टेट ने GI टैग मिले? यह दिता गया असम नूं। ठीक है, जिस तरीके नाल आपां डिस्कस किया सी जरदालू मैंगो और शाही लीची के लिए एग्रीमेंट साइन किया सी, तो शाही लीची कित्थे मिलती है? बिहार दे विच। तेजपुर लीची असम दे विच। वैसे तेजपुर एक प्लेस है असम दे विच, इस करके नाम तेजपुर के नाम से है, इंपोर्टेंट बनेगा, डायरैक्टली याद रखना। तेजपुर लीची नूं GI टैग किहड़ी स्टेट के लिए दिता गया है? असम के लिए। ठीक है जी। इस तो इलावा आप डिस्कस कर सकते हैं, होर भी इंपोर्टेंट न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। सब तो पहला केरला रिलेटेड, केरला दे विच एलीफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर है कुतूर केरला दे विच। सो याद होगा आप डिस्कस किया सी कि इंडिया का पहला एलीफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर, इतने डिस्कस कर लेने, एलीफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर इंडिया का फर्स्ट है जिहड़ा कित्थे बनाया गया सी? पहला केरला दे विच, केरला दे कुटूर दे विच। ठीक है, इस तो इलावा रिसेंटली आप डिस्कस किया सी दूसरा एलीफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर अनाउंस किया गया सी उड़ीसा दे विच। कित्थे? उड़ीसा दे विच बनाया जाएगा। इस तो इलावा एलीफेंट डे याद अगर करिए तो 12 अगस्त को ऑबजर्व किया जाता है, ये याद रखना है। रिसेंटली 12 अगस्त को ही आप डिस्कस किया सी सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया, एलीफेंट्स के लिए सुरक्षा पोर्टल भी लॉन्च किया गया सी। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स याद रखने ने एलीफेंट वाले रिलेटेड। ठीक है, और एलीफेंट हॉस्पिटल की गल करिए, ये कित्थे ओपन किया गया सी? मथुरा दे विच। फर्स्ट एलीफेंट हॉस्पिटल मथुरा दे विच, फर्स्ट एलीफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर केरला दे कुटूर दे विच। ठीक है, हुण जिहड़ी न्यूज़ है वो की है कि यह जिहड़ा ओपन किया गया सी इसनूं वर्ल्ड का लार्जेस्ट बनाया जाना है। ठीक है, इस दे विच जिहड़ी अकोमोडेशन है एलीफेंट्स की इस टाइम बेसिकली 16-17 के नज़दीक है, इसनूं 50 तक लेके जाया जाएगा। और जो यह 50 तक पहुँच जाएगी बेसिकली 2021 टारगेट अनाउंस किया गया है कि 2021 तक इसनूं लार्जेस्ट बना दिता जाएगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट केयर एंड क्योर सेंटर फॉर एलीफेंट्स। कित्थे होएगा? केरला दे विच, केरला दे कुटूर दे विच। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा केरला द्वारा ही अनाउंस किया गया फ्री इंटरनेट फॉर पुअर फैमिलीज एंड पब्लिक ऑफिसिज। तुहानूं याद होगा आप डिस्कस की थी स्कीम केरला की के फोन नेटवर्क। ठीक है, इस के फोन नेटवर्क का ही हिस्सा है, अनाउंस किया गया है कि फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा पुअर फैमिलीज और पब्लिक ऑफिसिज दे विच। ठीक है, इस तो इलावा अगर केरला की ही गल करिए, रिसेंटली अपने फिक्स प्राइस वैजिटेबल्स बारे डिस्कस किया सी। केरला दे विच ही रिसेंटली अगर आप गल करिए प्रसाद स्कीम के अंडर गुरुव्यूर नामक प्लेस नूं ऐड किया गया सी। नैक्सट गल करते हैं कर्नाटका की, तो कर्नाटका गौरमेंट ने टाटा टैक्नोलॉजीज
टाटा कंपनी है जी टाटा टैक्नोलॉजीज़ के नाल पार्टनरशिप की है ITIs नू अपग्रेड करने के लिए। और इससे रिलेटेड न्यूज़ काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगी। सागर कवच एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, कल भी इसके बारे डिस्कस किया अपने। सागर कवच एक्सरसाइज है जी वैस्ट बंगाल और उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज की गई। सागर कवच एक्सरसाइज वैस्ट बंगाल और उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, जिसके नाल इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी इस पार्टिसिपेट किया है। कित्थे ऑर्गेनाइज की गई है? उड़ीसा के उड़ीसा के पैरादीप पोर्ट के। तो हुण क्वेश्चन किस तरीके नाल पूछा जा सकता है कि पैरादीप पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? उड़ीसा के पैरादीप पोर्ट किहड़ी एक्सरसाइज कंडक्ट की गई रिसेंटली? सागर कवच एक्सरसाइज। पैरादीप पोर्ट के उत्ते जिहड़ी सागर कवच एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस ने इस पार्टिसिपेट किया है? तो वैस्ट बंगाल और उड़ीसा द्वारा। ठीक है जी, सारे फैक्ट्स याद रखने ने। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होएगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो काइंडली अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।